سورت اخلاص جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ڈیفنس میں نازل کی ہے، اور سورت کافرون جو ہے وہ دین اسلام یا شریعت اسلام کے ڈیفنس میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں ابھی انشاءاللہ ہم سورت کافرون نیکسٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میرے خیال 2 صورتوں کے بعد پھر ہم سورت اخلاص کریں گے۔ اور پھر میں دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آنیسٹلی اب سو مچ ایکسائٹیڈ کہ رمضان سے پہلے ہمارا 30th پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ پھر جو ہم نے سیکھا ہوگا نا اس کے بارے میں رمضان میں ہمیں یاد آتی رہے گی، اور ہمارا انشاءاللہ جب ہمیں آخرت کی یاد تازہ رہتی ہے نا تو عبادات کا مزہ بھی فرق ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ سورہ جب اس کے بعد آج کی کلاس کے بعد آپ پڑھیں گے نا، آپ اس کو اتنا انجوائے کریں گے، آپ ایکچولی دل کی گہرائیوں سے اس کو پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں عادت ہوتی ہے ہم ایسے ہی بس پانی پینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی کام شروع کرنا ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں میننگز کا پتہ چلتا ہے نا تو پھر نہ صرف پانی بلکہ آپ کسی درد میں بھی ہوں گے نا تو پھر بھی آپ کے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے گا کہ میں پکار کس کو رہی ہوں، کیونکہ رحمان یہاں پہ انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ سورہ بسم اللہ سے ہی شروع ہوگی، رحمان کا میں آپ کو یاد کروا دوں ایک دفعہ پھر سے، میں نے بہت پہلے آپ کو آئی تھنک بتایا تھا اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت آتی ہے نا اس میں رحمان و رحیم ہے۔ دیکھیں رحمان جو ہے نا وہ آپ ایسے سمجھے جیسے ہم اس کا ابھی جو گرامر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے نا میں ریگولر کر کے بتاتی ہوں کہ اس کا وزن جو ہوتا ہے نا وہ ایسے جیسے غصبان کہتے ہیں غصے کی حالت میں، یا پھر آتا ہے فولان کے وزن پہ ہے، طوفان، یہ آپ کو یاد رہے گا، آپ یاد رکھیے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ طوفان کے وزن پہ آتا ہے رحمان، ٹھیک ہے؟ طوفان میں کیونکہ اس کا روٹ ورڈ فرق ہے تو کیسے ہوتا ہے کہ جب ریگولر پانی سمندر میں ہے، نہر میں جہاں بھی ہے، پانی اپنی حدیں کراس کر کے پورے جوش کے ساتھ پورے نکلتا ہے اور وہ کیسے تباہی کر دیتا ہے نا ساری کی ساری۔ اب یہاں پہ رحمان میں آپ بالکل وہ ویژن اپنے دماغ میں لائیے کہ جب وہ، کیونکہ اس کا مادہ کیا ہے، راحمیم، رحم سے ہے، اور اسی چیز کو رحم میں ڈالیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنا رحم ہے کہ وہ ہر بندش، ہر چیز جیسے کراس کر کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے اوپر رحم کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تجھے اللہ نے معافی نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ رحمانیت کی جو کثرت ہے نا اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھا کرے۔ جب آپ کو کبھی بڑا درد ہو، تکلیف ہو نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھ بند کر کے پڑھیں کہ اللہ تیری رحمت تو بے قرار ہے، مطلب اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، تو میرے پہ بھی رحم کر دے یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ آدم علیہ السلام نے جب یہ پڑھ کے توبہ کی تھی تو اللہ نے نبوت عطا کر دی تھی۔ تو یہ اس لیے جب بھی پڑھتے، رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں انسان کی طرح، آپ سوچتے ہیں کہ رحیم کتنا رحیم ہے، تو وہ رحیم اس نے وہ صفت لی، مطلب اللہ نے عطا کی ہوئی ہے اس کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی یہ صفت ہے، اللہ خود رحیم ہے، مطلب وہ مسلسل کہتے ہیں نا مسلسل رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا۔ تو اس لیے اب آج کے بعد سے جب آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے نا، آپ نے یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یا اللہ تیرا کرم اتنا زیادہ، یا اللہ مجھ پہ کرم کر دے، میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، کسی طرح سے بھی جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہو تو بسم اللہ کے ساتھ آپ اس طرح سے اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ کوثر کو بھی ایسے ہی دیکھیں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں
मक्का में क्या सिचुएशन थी जब ये नाज़िल हुई थी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि सूरत अल कौसर जो है ये नुज़ूल के एतबार से 50 नंबर की सूरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला जो थे, उनकी जब वफ़ात हुई थी, आपको पता है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे पहले एक बेटे थे जो कासिम थे, सबसे बड़े थे। कासिम की वफ़ात जो थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जब उनको वही आई थी ना पहली दफ़ा 40 इयर्स में थे, उससे पहले उनकी वफ़ात हो चुकी हुई थी। अच्छा, अब ये जो बेटे थे अब्दुल्ला, इनकी वफ़ात नबूवत के बाद में होती है। रसूलुल्लाह की 4 बेटियां हैं, ठीक है? एक रुकिया, उम्मे कुलसूम और रुकिया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये 4 बेटियां। अच्छा, अब ये 2 बेटे और फिर रवायात में आता है कि एक सबसे छोटा बेटा भी था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पे उन्होंने रखा था, इब्राहीम उनका नाम था। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक और क्या करना है कि हम देखेंगे कि उस ज़माने में उनके रस्म और रिवाज क्या थे, कि उनमें क्या उनकी सोच कैसी होती थी। अब ये बोलते हुए ना मुझे ये लग रहा है कि उसके ज़माने की क्या बात कर रहे हैं, हम आज के ज़माने की अगर बात करें तो एग्ज़ैक्टली सेम हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि बेटों को समझते हैं कि ये तो हमारी बुढ़ापे का सहारा, और बेटा तो बहुत बड़ी चीज़ है, और जिसके बेटे होते हैं तो वो तराते हैं इतने, और जिनकी बेटियां होती हैं, और जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि रहमत है, लेकिन जब पैदा होती है तो ऐसी शक्लें बना लेते थे जैसे शक्लें स्याह हो गई हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उस ज़माने का तोड़ा है सूरत कौसर में। बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि बताया क्या कि ये जो तुम लोग सोचते हो कि बेटे तुम्हारे बाद में काम आएंगे, तो कुरान पाक में भी अल्लाह ने फरमाया ना कि अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात, कि माल, और 2 ही तो कमजोरियां हैं ना बंदे की सबसे बड़ी, कि माल और बेटे तुम्हारी दुनिया की जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी की जीनत है जो तुमने बनाई हुई है। असल की जीनत जो है ना वो तो जो तुम नेक अमल करते हो, तो वो तुम्हारे हैं कि अल माल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात, कि नेक जो चीज़ें वो तुम्हारे साथ जाएंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं खैरुन इंद रब्बिका, तेरे रब के नज़दीक जो सबसे बेहतर है। तो इसी चीज़ को आज हम जो कुरान से जुड़ते हैं ना, उनका नज़रिया बिल्कुल फ़र्क हो जाना चाहिए। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटे दिए और वापस ले लिए। और इस वक़्त में जिस वक़्त ये वाले वाक़या हो रहा है, सूरत अल कौसर नाज़िल हो रही है, ये अब्दुल्ला जब पैदा हुए हैं, आप सोचिए ज़रा कि उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम वो लोग जो हम सोचते हैं ना कि अब तो हमारी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खुल गया, अब मेरी नमाज़ें परफेक्ट होना शुरू हो गई, मैं अब अच्छे काम करना शुरू हो गई, अब तो मैंने हिजाब भी लेना शुरू कर दिया, अब मैंने अपने कवर करना शुरू कर दिया, मैंने ये करना शुरू कर दिया। फिर अगर मुसीबतें कभी आ जाती हैं, तकलीफ़ें आ जाती हैं, आज़माइशें आ जाती हैं, तो बंदा परेशान हो जाता है कि हाय, अब तो मैं अच्छे काम करना शुरू कर दिया था, तो मेरा तो सारा चीज़ें उल्टी पड़ गई हैं। ये सूरा आपको ये बताने के लिए है कि किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई थी। अब देखिए, उससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा से शादी हुई थी। हज़रत खदीजा मक्का की अमीर तरीन औरत, ठीक है, और इतने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाता पीता घराना सब ठीक ठाक चल रहा था। अब वही आती है, रसूलुल्लाह दीन का काम कर रहे हैं, कोई और दीन का काम भी कौन कर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिन रात दीन का काम कर रहे हैं। और फिर उनके बाद क्या होता है कि उनका ख़ानदान, सबसे पहले आप देखिए अबू लहब, उनके सगे चचा, कितनी नफ़रत वो करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और किस तरह से आप देखिए कि हमसाए थे, दीवार एक थी, ऐसा नहीं तो कि बड़े बड़े महल हैं तो कोई नहीं, दीवार एक है तो क्या पता चल रहा है क्या नहीं, एक एक कमरे का घर होता था।
اور ایک ایک کمرہ اور آگے صحن ہوتا تھا. وہ صحن ہی ڈرائنگ روم بھی ہوتا تھا، کچن بھی ہوتا تھا، بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی تھی. وہی سارا کچھ ہو رہا تھا. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، ساتھ والے گھر میں بھی ساری آوازیں جا رہی ہوتی تھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں یہ خبر آتی ہے عبداللہ کی وفات کی، تو یہی چچا خوشیاں مناتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ، اب جو ارد گرد کے لوگ جو جیسے ہوتا ہے نا کہ قبیلہ، تو بڑی وہاں طاقت ہوتی تھی کہ میرا قبیلہ، میرے لوگ. کس طرح سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، کیسے ان کو تانے دیتے تھے، کیسے ان کے گھر کے آگے وہ کانٹے بچھا دیتی تھی ابو لہب کی بیوی، اور کس طرح سے ان کو اموشنلی کس طرح سے ڈرین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دینا شروع کیا. دائیے دین. دیکھیں ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو ایک تو ہوتا ہے نا میری ذات ہی بہتر ہو گئی ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھنا شروع ہو گئی، میں یہ بھی کرنا شروع ہو گئی، ایک جو اللہ کے راہ میں نکل پڑتا ہے کہ میں جی دائیے دین ہوں، مجھے اب دین کا بھی کام آگے پھیلانا ہے. اس کے بعد 2 بیٹیاں گھر میں جن کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتیبہ اور عتبہ کے نام سے. تو انہوں نے ابو لہب نے کہا کہ ان کو تم طلاق دے دو، تو ان دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. 2 بیٹیاں طلاق لے کے آ گئی ہیں، بیٹے کی وفات ہو گئی ہے. مطلب محلے میں جو لوگ ہیں وہ تنگ کریں، قبیلے کے لوگ تنگ کریں، اور گھر میں آہستہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو اتنی امیر عورت تھی، ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیادوں میں لگا. یہی وہ بیوی تھی جو شیب ابی طالب کا ہم نے زمانہ پڑھا تھا نا ایک دفعہ، کہ ان کو پتے کھانے پڑے تھے، اور اسی میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، اور حضرت خدیجہ کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی تھی، اور اس کو عام حزن کہتے ہیں. اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کی سوچ کو شفٹ کر رہے ہیں وہ ہم اس سورہ میں دیکھیں گے. آپ میں سے ہر وہ جس کو کبھی بھی یہ لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ دکھ کسی کا ہے ہی نہیں ہے، میں ایموشنلی بریک ہو گئی ہوں، میرے پاس تو ایک کے بعد کہتے ہیں نا کہ ہائے ہائے بس بھی ہو جائے. ہم کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں نا کہ غم پہ غم پڑ رہا ہوتا ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا کریں کہ کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جب کبھی تم اپنی زندگی میں پریشانیاں دیکھو تو میری زندگی دیکھ لیا کرو. ہمیں حوصلے مل جاتے ہیں. آپ بلیو کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا، چلو اپنا غم نہیں نا، کسی کا غم سن کے نا بندہ بالکل میوٹ ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا کہ تسلی دینی ہوتی ہے تو تسلی بھی نہیں دی جاتی. میرے ساتھ خود ایسے ہوا تھا. میں لاسٹ ایئر رمضان میں مسجد میں تھی، تو ایک مطلب مجھے ملی ایک خاتون وہاں پہ. میں ان کو بہت پرانے سے جانتی تھی، وہ میرے پاس ایک زمانے میں کام کرتی تھی. تو مجھے اس کی بڑی پیاری سی ایک چیز یاد تھی کہ ہمیشہ کہتی تھی کہ عائشہ جی مجھے آدھا گھنٹہ پہلے گھر جانا ہے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میرے ہسبینڈ گھر آئے تو گھر خالی ہو، اور وہ چابی لگا کے گھر کھول کے آتے ہیں. اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا. تو ہمیشہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے جاتی تھی کہ جب میرے ہسبینڈ آئیں گے تو میں نے گھر کے اندر ہونا ہے. اچھا، میں نے جب اس کو دیکھا نا تو مجھے وہ دن یاد آ گئے، اس کی وہ بات یاد آ گئی. تو میں نے اس کو مسکرا کے ایک دم سے میں نے کہا کہ کیا حال ہے، ہسبینڈ کیسے ہیں؟ تو شی سیڈ کہ آپ کو نہیں پتا میرے ہسبینڈ تو مطلب فوت ہو گئے ہیں. اینڈ آئی واز لائک، ابھی میں وہ کہتے ہیں نا ایسے کر کے اس کو دیکھ ہی رہی ہوں کہ مجھے وہ اس کی محبت والا شکل یاد تھی جس وقت وہ کہتی تھی. تو اس کے ساتھ جو ایک عورت تھی انہوں نے کہا کہ ابھی لاسٹ منتھ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کے 2 بیٹے تھے، اس وقت تو چھوٹے چھوٹے تھے، 25 یا 24 ایئرس کا بچہ. تو میں آنیسٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ سانس نہیں آتا، بندہ ایسے ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو کوئی تسلی دوں، میں خود ہی رونا شروع ہو گئی. اور میں آئی کونٹ کنٹرول مائی سیلف کہ یا اللہ میں اس کو کیا تسلی دوں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ یا اللہ یہ مطلب کھڑی ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے،
اللہ सुब्हान ताला ऐसे वक्त में सूरत कौसर याद रखिएगा, पहले से अपने दिमाग में ये पूरा सिनेरियो बिठा के रखिएगा रसूल अल्लाह की ज़िंदगी का, ताकि अल्लाह ना करे कभी ऐसा होता है ना कि अपनी ज़िंदगी में कोई गम आए या किसी को आए तो आप एकदम से आगे से बोल सकें, उसको तसल्ली के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लफ्ज़ बता दें और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला तसल्लियाँ दे देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अब हम आते हैं वजह नुज़ूल क्या थी। इसके अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से मुफस्सिरीन ने कहा कि ये मक्की दौर की सूरा है, कुछ ने कहा कि ये मदनी दौर की है। जिन्होंने कहा ये मक्की दौर की है, उसमें आता है आस बिन वाइल का नाम आता है कि उनको जब पता चला, अपने दोस्तों में बैठे हुए थे, तो जैसे ये खबर अब्दुल्ला की उनको मिलती है कि उनकी वफात हुई है, तो बड़े रौनक से, बड़े उस तरह से क्या कहते हैं, छोड़ो उसका क्या जिक्र करते हो, उसको तो अपने कबीले ने छोड़ दिया है। और उस सबसे बड़ी बात, उसके तो पहले मैंने बताया ना कासिम की डेथ हुई थी, तो उसके तो बेटे भी जिंदा नहीं है, तो उसका तो नाम लेने वाला कोई जिंदा नहीं है, तो उसके जिंदा नहीं रह रहा, तो तुम उसकी क्या बात कर रहे हो। सेकंड शान नुज़ूल में आता है अबू लहब का, कि अबू लहब का, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि साथ वाला घर था, एक दीवार थी, वहां से जब उसको आवाज आती है कि अब्दुल्ला की वफात की, तो खुशी के मारे ये कहता हुआ कि बातरा मोहम्मद कि मोहम्मद की जड़ कट गई, खुशी से घर से निकला और लोगों के अंदर जैसे खुशी से बोलते हैं ना, उस तरह से बोलना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में ये सुन रहे हैं। हज़रत खदीजा जो अपने बेटे के गम में है, अभी वो आप सोचिए, इमेजिन, अभी साथ साथ आपने अपने आप को रख के करना है कि अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसे हो, लेकिन क्योंकि हम वो दर्द फील करना चाहते हैं। अब सोचिए कि वो सुन रही हैं कि लोग उनकी वफात पे खुशियां मना रहे हैं। हम तो वैसे ही सांस नहीं निकलता जब किसी की डेथ की सुनते हैं खबर, तो यहाँ पे तो अपना बेटा था। और जिन्होंने ये कहा कि ये मदनी है, उसमें आता है अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, कि बैठे हुए बात कर रहे थे कि रसूलुल्लाह ने आंखें बंद की, जैसे ऊँग नहीं आती है थोड़ी देर के लिए, तो फिर आंख खोल ली और वो मुस्कुरा रहे थे। तो कहती है हमने जब उनको देखा तो पूछा कि या रसूलुल्लाह आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्होंने फिर ये सूरत अल कौसर की तिलावत की थी। तो ये तीन, अच्छा, जो शान नुज़ूल होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक वाक़या के, मतलब उस टाइम पीरियड में ये ऐसे वाक़यात हो रहे थे जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत कौसर नाजिल की थी। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी, क्योंकि ये छोटी सूरह ना, आज मैं डिफरेंट तरह से आपको करवा रही हूँ। हम लफ्ज़ों को खोलेंगे, एक एक लफ्ज़ को खोल के देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों, क्या लफ्ज़ कैसे, जैसे कुरान का कहते हैं ना मौज़ा है, हम जितनी दफ़ा पढ़ें एक नई चीज़ समझ आती है। तो इसको आप ये देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो लफ्ज़ों की प्लेसमेंट है ना, वो कितनी खूबसूरत तरह से आपको समझ आएगी। वैसे तो पूरे कुरान में, क्योंकि हम तो डिफरेंट वे से पढ़ रहे थे ना, आज हम सूरत कौसर को इस तरह से देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, कि यकीनन हमने आपको अता की कौसर खैर कसीर। हम यही तर्जुमा करते हैं ना। अब इसी तर्जुमे को आप ज़हन में रखिएगा और अब देखिएगा, इन्ना सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शुरू किया। इन्ना जो है ना, इसमें ना दो नून होते हैं, जैसे इन और ना। अच्छा, जो ग्रामर के स्टूडेंट है दे नो के जैसे ना जो होता है ना, ये जमा के लिए आता है, और या जो होता है ना, या मुतकल्लम उसको कहते हैं, वो होता है वाहिद के लिए आता है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन ना कह के, कि इन और ना, ये जब भी पूरे कुरान में आप देखिएगा जहां पे भी इन्ना आता है ना, बेशुमार जगह पे आपको मिलेगा। इसको कहते हैं हरफे ताकीद, कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई ताकीदन बात कहते हैं ना, उस वक़्त इन्ना से उस जुमले को शुरू किया जाता है। अच्छा, इन्ना में ये कहते हैं कि कोई इसके बाद जो बात आती है ना,
वो कोई बहुत बड़ी खबर होती है। और जैसे हम पढ़ते हैं अल्लाह गफूरुन, अल्लाह गफूर है, हम पढ़ते हैं ना, और अगर हम इसके साथ इन्ना लगा देते हैं ना, तो इन्नल्लाह गफूरुन, तो यकीनन अल्लाह जो है वो गफूर है। तो इस तरह से इसमें जोर होता है। अच्छा, दूसरा इन्ना जो होता है ना, आप एक बात भी देखिएगा कि उसके बाद जो भी सेंटेंस होता है ना, इन्ना जो होता है उसका शक दूर करने के लिए होता है कि वो सेंटेंस जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो नेमत अता कर रहे हैं या जो भी बात कह रहे हैं ना, उसमें इंसान को शक हो सकता है। उसमें सेंटेंस की उसकी बनावट जो होती है, उसका जब मीनिंग हम पढ़ते हैं तो उसमें शक आ सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे पहले ही इन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उस शक को दूर कर देते हैं कि यकीनन इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन और ना, जैसे कि मैंने बताया कि ना किसके लिए आता है, जमा के लिए आता है। या आता है ना रब्बी जैसे हम कहते हैं, और ना आता है रब्बना, ए हमारे रब। अच्छा, यहाँ पे और कुरान में डिफरेंट मुकाम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वाहिद है ना। हमने हमेशा से यही पढ़ा है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर ना क्यों इस्तेमाल किया हुआ है, और उसकी आप देखिए कि स्कॉलर्स जो है उसकी इतनी खूबसूरत उसकी बताते हैं कि ना जो है ना, एक्चुअली ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की किब्रियाई और अल्लाह की शान को बयान करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी से बात करते हो तो किसी को कहते तू ऐसे कर ले, तुम ऐसे कर लो, और कभी हम कहते हैं आप ऐसे कर ले, मतलब अल्लाह की किब्रियाई बयान करता है। दूसरी बात आपने गौर से सुनी है कि जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमतों का जिक्र करते हैं, वहां पे कोई भी अल्लाह, सारी चीजें तो अल्लाह की नेमतें ही है ना दुनिया की, तो वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ना का सीगा लेके आते हैं। ठीक है, और जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इबादत का जिक्र आता है, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद का सीगा लेके आते हैं। अच्छा, अब कैसे, जैसे हमने सूरत नबा में पढ़ते ना, वजअलना लैला लिबासा, कि हमने वजअलना, हमने बनाया, लैला लिबासा, रात को लिबास बनाया, वजअलना नहारा माशा, और हमने दिन को माश का जरिया बना दिया। अच्छा, अब जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के वाहिद होने का आता है ना, तो देखिए वहां पे आता है वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदूनी, कि नहीं पैदा किया मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। तो वहां पे देखिए नी या का सीगा है, जहाँ पे नेमते हैं ना, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन भी करते हैं लोग, तो आप लोगों को आज के बाद इंशाल्लाह इस पे भी कोई ऐसी चीज नहीं होगी, फौरन आप इसका जवाब दे देंगे कि जहाँ पे ब्लेसिंग्स है वहां पे ना का आता है, ना अल्लाह सुब्हानहू तआला से का यूज करते हैं, और जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद का जिक्र आता है, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद का सीगा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इन्ना आतोइना। अच्छा, आतोइना जो है ना, इसका रूट वर्ड जो है वो आप देखें, आइन तो और वाव, आइन तो वाव, आतोइना का। अच्छा, आतोइना का आप देखें ये पूरा एक सेंटेंस है। अब देखने को तो ये एक लफ्ज लग रहा है ना, तो इसके अंदर आप देखें, इसका तर्जुमा करें, हमने अता किया आपको, पूरे का पूरा आ जाता है इसके अंदर। तो अगर हम अता को देखते हैं ना, तो कुरान पाक में आप देखें डिफरेंट तरह से अता का मतलब किसी को देने के लिए, मांगने के लिए जब हम कहते हैं ना, तो डिफरेंट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वर्ड्स यूज किए हैं। जैसे हम कहते हैं रब्बना हबलना, अता कर दे मुझे, रब्बना आतीना, आतीना हमजा ताया, ठीक है, वो रब्बना आतीना ता है ना, ये तो है और ये वो ता है, रब्बना आतीना वो भी इसी के लिए आता है। यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना क्यों इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब जहाँ पे आता है ना हब, रब्बना हब लना, तो वो हम जब अल्लाह
सुब्हान तआला से दुआ मांगते हैं ना कि अल्लाह रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, कि मेरे खामंद और मेरी औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे। तो हर माँ को ये पता है कि हम अल्लाह सुब्हान तआला से कोई छोटी चीज़ नहीं मांग रहे हैं, इतनी बड़ी तोहफा मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हान तआला से कि मेरी औलाद को और मेरे खामंद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे और उन्हें मुत्तकियों का इमाम बना दे। वहाँ पे हम हब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, है ना? अच्छा, फिर हम कहते हैं रब्बना आतीना, ए रब हमें अता कर, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराती हसनतन। आतीना जो होता है ना, उसके अंदर 2 मीनिंग आते हैं। नंबर 1 ये कि ऐसी नेमत जो अल्लाह सुब्हान तआला दे और वो वापस भी ले सकते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने दी है, उनकी नेमत है, वो वापस ले सकते हैं। और दूसरी आती है कि वो नेमत जो अल्लाह सुब्हान तआला अता करते हैं ना, उसके साथ ज़िम्मेदारी भी आ जाती है। पता है कैसे? जैसे हम दुआ करते हैं ना, बड़ी प्यारी वो आया है कि वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, है ना? अजीबु दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली। कितनी दफ़ा हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हान तआला ने शर्त लगा दी है कि मेरा बंदा जब भी, ए नबी बता दे इनको कि वो जब भी मुझे पुकारता है मैं उनकी पुकार सुनता हूँ, बस उनको भी चाहिए फलयस्तजीबू ली, कि मेरे भी हुक्म माने। तो सा कंडीशन आ जाती है। तो ये आतीना जो है ना, इसके साथ भी कंडीशन होती है जिम्मेदारी की। जैसे अल्लाह ने अगर आंखें दी हैं तो जिम्मेदारी भी तो दी है ना साथ, कि आंखें सिर्फ वही चीज़ देखें जो अल्लाह का हुक्म है, कान वही सुने जो अल्लाह सुब्हान तआला ने बताया है, जुबान वही बात के जो अल्लाह सुब्हान तआला ने बताई है। तो ये आतीना हो जाता है। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा उसके बारे में, कारून के बारे में आता है ना, व आतैनाहु मिनल कनूज़, कि कनूज़ के अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि हमने उसको खजाने अता किए और उसके बाद उसको ज़मीन में दंसा दिया। अल्लाह ने जब चाहा खजाने वापस ले लिए। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखिए कि आतैना, यहाँ पे हमज़ा, आइन, तौ और वाव, ये 3 इसके रूट वर्ड आते हैं ना। इसके अब क्या मतलब है, अब ये आपने गौर करना है। नंबर 1 ये कि कोई ऐसी जिम्मेदारी, कोई ऐसी नेमत जिसके साथ कोई जिम्मेदारी अटैच नहीं, ठीक है। नंबर 2, किसी को उसकी फर्माबरदारी से खुश होकर अता कर देना। नंबर 3, किसी को दुनिया में वो दे देना कि जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता, मतलब ऐसी खबर, ऐसी खुशखबरी दे देना कि वो सोच भी नहीं सकता। अच्छा, वो जो चीज़ दी है ना, वो कोई मामूली शय नहीं होती है, और किसी को बगैर किसी गर्ज के कोई शय अता कर देना, ये सारे मीनिंग आतैना में आते हैं। जो अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पे आतीना नहीं कहा, हबलना नहीं कहा, अजर भी नहीं कहा। अजर जो होता है ना, उसके अंदर भी कोई उम्मीद साथ होती है कि किसी वजह से, मतलब हमने किया होता है तो हम अजर को मांगते हैं। आतैना, अल्लाह सुब्हान तआला ने अता कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट लफ्ज़ की तरफ जाते हैं, फिर इंशाल्लाह हम इस आया की तफसीर करेंगे। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया आतैना का क्या दिया, अल कौसर, हमने आपको कौसर अता की। कौसर का जब हम अक्सर मुसहफ में पढ़ते हैं ना, खैर कसीर कहते हैं। तो हम खैर कसीर क्यों कहते हैं? यहाँ तो कौसर का मतलब है कि हमने तो आपको बहुत ज़्यादा अता कर दिया है ना। साहबा ने पूछा था रसूल अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ने अभी यहाँ पे ये तो नहीं बताया कि अच्छा जो दिया है वो क्या दिया है, तो रसूल अल्लाह ने खुद ही एक्सप्लेन किया था, इंशाल्लाह वो भी देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि कुरान पाक में भी जो कसरत के लिए जो सीगा इस्तेमाल होता है, ये कौसर जो है ना, ये मुबालगे का सीगा है, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ देने का। अच्छा, एक होता है कसरतुन, कथरतुन, कसीरुन और कसूरुन और कौसर, ये सारे वर्ड्स आते हैं। अब जो कसीरुन जो होता है ना, वो ऐसी खैर, मतलब ऐसी चीज अता होती है जिस जो खैर भी हो सकती है और शर भी हो सकती है, दोनों होती है। इसीलिए हम अल कौसर के साथ, सिर्फ कौसर जो है ना, वो सिर्फ खैर के लिए आता है,
उसमें बुराई हो ही नहीं सकती, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने यहाँ पे कौसर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमने खैर कसीर, इसलिए हम इसको खैर उसके साथ अटैच करते हैं, हालाँकि वहाँ पे लिखा नहीं होता है ना। अच्छा जी, अब यहाँ से आप आइए इस बात पे कि सहाबा ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैंने वो हदीस आपको सुनाई थी ना कि रसूलुल्लाह ने जब आँख खोली तो मुस्कुरा रहे थे, तो सहाबा ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे सूरत अल कौसर पढ़ के बताई कि ये मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से तोहफ़ा मिला है। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह ये कौसर क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुवा नहरुन, कि ये एक नहर है जो अल्लाह ने मुझे अता की है और इसमें बेइंतहा खैर है। अच्छा, एक और जगह रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हुवा हौदुन, कि ये एक हौद है, जो ऐसा हौद है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के दिन जमा होगी और उसके गिर्द कप व जार इतने हैं जैसे आसमान के तारे हैं। अच्छा, अब देखिए ये गौर से अपने अपने काउंट करके ना ये हदीसें भी याद रखनी है। बहुत प्यारी हदीसें आपको इंशाल्लाह याद रहेगी क्योंकि ये हमारे लिए है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे हौद के इर्द-गिर्द टेंट होंगे और वो टेंट जो है ना वो पर्ल, बड़ा एक ही पर्ल को कार्व करके वो टेंट बनाए जाएंगे और वो टेंट मेरी उम्मत के मोमिनीन के लिए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उस हौज से मेरी उम्मत जो है वो पानी पिएगी क़यामत के दिन और उसे उसके बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। अब देखिए हमने पढ़ा ना जन्नत में नहरें होंगी, दूध की नहरें, शहद की नहरें, वहाँ पे प्यास की वजह से हम नहीं पिएंगे, वो हम अपनी लज्जत की वजह से पिएंगे। लेकिन ये जो हौज़ कौसर का पानी है ना, जब वो एक दफ़ा जो इंसान पी लेगा उसके बाद उसको प्यास नहीं लगेगी। और आप याद करें ज़रा क़यामत का दिन कि वो जो सवा नेज़े पे सर के ऊपर आएगा, सूरज होगा और चलने की, जो पहले मैंने हदीस इसीलिए पहले बयान कर दी थी कि इंसान मतलब एक पाँव से अगला पाँव उठाना उसके लिए मुश्किल होगा और इतने 50,000 साल का वक्त होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा को बताया। अब ये हदीस आपने गौर से सुनिए और इस पे से अमल निकालना, अमल की बात निकालनी है आप लोगों ने कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं फरिश्तों, अच्छा, कि क़यामत के दिन मेरे उम्मती जब हौज़ कौसर को देखेंगे, इस हौज़ को देखेंगे तो उसकी तरफ रश करेंगे। अब सोचिए उनमें से, हम में से भी कोई, सभी होंगे इंशाअल्लाह। तो हौज़ कौसर की तरफ रश करेंगे और जैसे ही वो आएंगे ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं उनको देख के खुश हो रहा हूँगा, मैं उनको पहचान लूँगा। कैसे पहचानेंगे? वुज़ू के असरात से पहचानेंगे। हम जब वुज़ू करते हैं ना तो वुज़ू का पानी जहाँ-जहाँ लगता है वो क़यामत के दिन वो चीज़ शाइन कर रही होंगी, नूर की तरह शाइन कर रही होंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी से हमें पहचानेंगे। कहते जैसे ही वो रश करके आ रहे होंगे तो फरिश्ते कुछ मुसलमान जो आ रहे होंगे उनको रोक देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि तुम इनको क्यों रोक रहे हो? ये तो मेरे उम्मती हैं, इनको आने दो। तो फरिश्ते कहेंगे कि या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते। गौर कीजिए इस हदीस में कि आप नहीं जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही गायब की बात बताई है जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते थे, जितना वो बताना चाहते थे। यहाँ पे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल कर गए हैं और ईच एंड एवरी उम्मती का उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, राइट? तो उनका आपको नहीं पता, आपके जाने के बाद इन्होंने दीन में नई नई चीजें इजाद कर दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे सुहकन सुहकन, कि दूर हो जाओ, कि तबाही हो, तबाही हो। तो जिन्होंने दीन को बदल दिया और जिन्होंने मेरा तरीका छोड़ दिया, ये है बिदात के बारे में। अब देखिए लोग आराम से कह देते हैं ना कि सो व्हाट, हम कौन सा बुरा काम करें, हम नेकी का ही काम कर रहे हैं।
बिदात जो है वो नेकी ही है, मतलब हम नेकी समझ के ही करते हैं उसको, हम कोई बुरा काम सोच के तो कोई ऐसा काम नहीं करते ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात कहूंगी, आप अपने माइंड से ना खुद से अपने आप से सवाल करें, ये इतना बड़ा मामला है कि हौज़े कौसर पे पानी नहीं पिलाया जाएगा अगर हमने जिंदगी में कोई बिदात की। अगर आपको थोड़ा सा भी शक लगता है ना कि ये जो काम मैं कर रही हूँ ये रसूल अल्लाह का तरीका है कि नहीं, अब छोड़ दें इस बात को कि उसका सवाब मिलना है कि नहीं मिलना, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कबूल करना है कि नहीं। सिर्फ अगर आपको शक भी हो रहा है ना कि ये तरीका रसूल अल्लाह का नहीं था, सहाबा के नहीं था, छोड़ दें उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बड़ी खैर चली जाए उससे ये चीज चली जाए, क्योंकि सुन्नतें तो इतनी हम अपनी पूरी जिंदगी में भी उनको पूरा नहीं कर सकते। आप देखें जो हम सुबह नमाज से शुरू होते हैं, जो तस्बीहात रसूल अल्लाह ने बताई है, जो तरीका बताया है, कुरान इज अ वे ऑफ लाइफ, हम पूरा दिन अपनी जिंदगी में हलाल है या हराम है, 5 ही चीजें कर सकते हैं ना। या हम कहेंगे कि ये जो भी चीज हम कर रहे हैं ये हलाल है कि ये हराम है, ठीक है, खाने में कर रहे हैं या फिर हम जिस तरह भी करें, या वो मुबाह है या फिर वो मकरूह है या फिर वो हराम है, ठीक है। ये 4-5 ही चीजें हम करते हैं ना जो हमारी जिंदगी में आती हैं। जहां पे आपको ये लगता है कि ये चीज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में नहीं बताई है, दीन में ऐड हम नहीं कर सकते, दीन क्या मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको ये लगे कि इसका अजर मिलेगा, दीन में शामिल करने की बात हो जाएगी, तो आपने वो काम नहीं करना। सारा दिन आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते रहे, आप देखिए आपको सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलता बेसिकली। तो फिर हजार लोग हमें कहते रहते हैं ना कुंडे ना करो, रसूल अल्लाह ने कब किए थे, साहबा ने कब किए थे, हम कहते हैं चलो जी रहने दो, हमारी तो अम्मी ने किए थे, दादी ने किए थे, उसने किए थे। हाँ, जब नहीं समझ आती है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आ जाती है बिदात की समझ आ जाती है, हौज़े कौसर में पानी ना पीने की समझ आ जाती है, तो फिर तो बच जाना चाहिए ना। कोई बात नहीं, आप तो अपने आप को सिर्फ ये कहें कि अच्छा रसूल अल्लाह ने नहीं कहा, हो सकता है इसमें खैर हो लेकिन मुझे नहीं करना।